A very good morning to all of you. So today we are going to start our new chapter, which is chapter number 5th, the agrarian relations, the N.A. Akbari, peasants, zamindars and the state, 16th and 17th, 16 to 17 AD. So in this chapter we are going to study about the N.A. Akbari, the agrarian, which means कृषि, एग्रीकल्चर. तो उसमें कृषि यानी एग्रीकल्चर जो है वो रिलेशंस कैसे थे उस टाइम पे, क्या था, ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. पीजेंट्स विच मीन्स जो किसान वगैरह थे, जो खेती करते थे, या और ज़मींदार. So in this chapter we are going to study about the agricultural relations of that time. The 16th century was a decisive and epoch-making event in Indian history. A significant political change occurred in the Indian history during the third decade of this century. A significant political change, कैसा, बहुत ज़्यादा important significant political change आया Indian history में during the third decade में of this century. It was the establishment of the Mughal dynasty in India. The Mughal dynasty occupies a very significant place in the history of India. It not only provided political unity to the country by establishing a large empire in India, but also built a national empire and national culture. The Mughal ruled in India during the period 1526 AD to 1857 AD. Founding of the Mughal Empire in India, कैसे फाउंड हुआ? The founding stone of Mughal Empire in India was laid by Babur. He had in his veins the blood of Genghis Khan and the two world-renowned great conquerors and empire builders. He defeated Ibrahim Lodi, the last sultan of Sultanate of Delhi, on April 21, 1526. So ये तो फाउंडिंग्स हैं मुगल एम्पायर की, कैसे इंडिया में आए. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आइन अकबरी, जिसको कि किसने लिखवाया था? अकबर ने लिखवाया था. किससे लिखवाया था? अबुल फजल से लिखवाया था. ओके, सी लिटरेचर इन पर्शियन, हिंदी, संस्कृत एक्सेट्रा registered a good growth during Akbar's reign. Under Akbar's patronage, many important historical works in Persian were produced, of which Akbarnama by Abul Fazl enjoys the highest place. Akbarnama भी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था. बिकॉज अकबर तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो इनके जो 9 ज्वेल्स थे यानी जो 9 रत्न थे, उनमें से एक कौन थे? अबुल फजल थे, जिसने ये अकबरनामा और आइन अकबरी को लिखा था. तो उसमें उस टाइम की चीज़ें, उस टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे कि इस चैप्टर में उस टाइम का एग्रीकल्चरल रिलेशन कैसा था, किस तरीके का था, क्रॉनिकल, सब कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई. इट वॉज ऑथर्ड बाय अबुल फजल बाय द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ मुगल एम्परर अकबर. अकबरनामा कंप्राइजेज 3 बुक्स. इसमें 3 किताबें थी, 3 बुक्स थी. द फर्स्ट 2 बुक्स प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल नैरेटिव. जो पहली 2 बुक्स थी वो उसमें क्या था? हिस्टोरिकल नैरेटिव. एंड द थर्ड बुक इज़ आइन अकबरी. इसका थर्ड पार्ट ही था आइन अकबरी. ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल. और ये 3 पार्ट्स में थी. ठीक है, अकबरनामा में. तो उसका जो फर्स्ट जो पार्ट था वो क्या बताता है? वो हिस्टोरिकल नैरेटिव बताता है. और जो थर्ड है वो क्या था? आइन अकबरी था. इनफैक्ट आइन अकबरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ regulations that were formulated by Akbar to run his administration smoothly. Thus, the Ain Akbari was a part of a larger project of history writing commenced by the emperor. After having gone through 5 revisions, it was completed in 1598 में complete हुआ. The 42nd regional year of the emperor. It was compiled as compendium of imperial regulations and a gazetteer of the empire. The Ain Akbari is made up of 5 books. 5 books से बनी हुई है ये. और दफ्तर्स, the first 3 books deal with the administration in detail. पहली जो 3 books हैं वो किस चीज़ से डील करती हैं, क्या बताती हैं? एडमिनिस्ट्रेशन बताती हैं बहुत डिटेल में. The first book is known as मंजिल आबादी
पहली बुक को उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट बुक को मंजिल आबादी, इट डील्स विद द कंसर्न्स एसोसिएटेड विद इंपीरियल हाउस होल्ड एज इट्स मेंटेनेंस, जो कि किस चीज़ से डील करती है, विद द कंसर्न एसोसिएटेड विद इंपीरियल हाउस होल्ड और उसकी मेंटेनेंस से, ठीक है। देन सिपा आबादी, द सेकेंड बुक कंसर्न्स द मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी बुक में क्या आया आपका, किस चीज़ से जुड़ा था वो, मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट नोटिस एंड शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ इंपीरियल ऑफिशियल्स एंड द mansabdars, learned men, poets and artists have been included in this book. The third book is known as the Mulk Abadi. It makes us know regarding the physical side of the empire and the provinces. It also provides detailed information about the revenue rates. It furnishes detailed statistical information about the 12 provinces of the empire: आई, काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, अवध, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, मालवा, इलाहाबाद, बिहार एंड बंगाल। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है अकबरनामा, जिसको लिखा अबुल फजल में, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में नहीं 3 बुक्स में डिवाइड थी। फर्स्ट जो 2 थी वो आपको हिस्टोरिकल नैरेटिव बताती हैं, थर्ड थी आपकी आईने अकबरी। अब आईने अकबरी जो आई वो 5 पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है, मतलब 5 बुक से मिली थी। तो यहाँ पे आपको हर बुक के बारे में बताया जा रहा है कि जो शुरू की फर्स्ट जो 3 बुक्स थी वो किस चीज़ डील करती है, एडमिनिस्ट्रेशन से डील करती है। फर्स्ट बुक को मंजिल आबादी कहा गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, सेकंड बुक जो थी सिपा आबादी थी, वो किस चीज़ से, वो मिलिट्री सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्वे नोटिस और शॉर्ट बायोलॉजिकल स्केचेस इन सब से डील करती है। थर्ड को मुल्क आबादी कहा गया, वो किससे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। Ain Akbari also give us detailed information about Sarkars below the Suba. These information have been compiled in front of tables. Every table has 8 columns. These columns provide information such as देखिए यहाँ पे अब आपको आईने अकबरी जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है, किसके बारे में, सरकार के बारे में, ठीक है। ये टेबल के फॉर्म में होते हैं और कुछ उन टेबल्स में कुछ कॉलम्स भी हैं, उनमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे महल है, किला है, ज़मीन है, नकदी है, ये सारी चीज़ों के बारे में, ज़मींदार हैं, ओके। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली अबाउट द टॉपिक आईने अकबरी। व्हाट इज़ आईने अकबरी? आईने अकबरी अकबरनामा के अंदर की एक किताब है जिसमें कि उस टाइम की एग्रीकल्चर, उस टाइम की चीज़ों के बारे में, क्रॉनिकल्स के बारे में लिखा हुआ है। इसको अकबर ने लिखवाया था अबुल फजल में, जो उनके 9 ज्वेल्स में से एक थे, ठीक है। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये भी मैंने आपको बताया। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक आईने अकबरी ईजिली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।